Hello friends, today I will explain you a video. Today I will explain you acute heart attack, acute chest pain, acute MI myocardial infarction in which ECG changes are positive and TROP-T is also positive. As you can see the second line in TROP-T is a test which is done for diagnosing the acute myocardial infarction. As you can see, one line is negative and two line are positive. So this is TROP-T, troponin T test, which is cardiac enzyme, cardiac marker, which is secreted from the cardiac muscles, myocardium. So as you can see, positive is two lines. So here is one line and here is faint second line. So with the ECG changes and presenting complaints and TROP-T positive, we make the diagnosis. So how to approach a patient with chest pain, particularly cardiac, I will describe in brief. तो आखिरी तक बने रहिए, मैं ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये पेशेंट डिस्नी ऑन एक्सर्शन एंड चेस्ट पेन की कंप्लेंट के साथ में प्रेजेंट हुआ है। 10 से 15 दिन की इसकी कंप्लेंट है। नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन है। तो इस सबसे पहले हम चेस्ट पेन है तो ये कार्डियक ओरिजिन है या नहीं, ये रूल आउट करने के लिए हम लोग पहले ईसीजी करते हैं। तो जब हमने इस पेशेंट का ईसीजी किया तो मैं आपको जो सिग्निफिकेंट चीज़ें बस वही बताऊंगा। इसमें V1 में आप देखिए ST सेगमेंट एलिवेशन है, V2 में ST एलिवेशन है। तो ये इंडिकेट करता है सेप्टल MI की तरफ, जो सेप्टम होता है हार्ट का उसकी तरफ इंडिकेट करता है। एज यू कैन सी हियर इज एलिवेशन इन V1. दिस इज द this ST segment is above the baseline and also coving. It is not in normal morphology, and also some changes, as you can see some coving in V2 also. So this indicate towards the this myocardial infarction. बस 2 मिनट. And as you can see, after ECG we did the TROP-T test. TROP-T is positive. So 3 things make the diagnosis very confirm. First is chest pain. Second we did the ECG में ST elevation आया. And third we did the TROP-T. So whenever these 3 things are together, that means the diagnosis of acute MI we can make. And we will give the loading dose, and in this loading dose we give the in this loading dose we give the aspirin, ecosprin 75 mg 4 tablets, clopidogrel 75 mg 4 tablets, and atorvastatin, which is anti-hyperlipidemic drug, atorvastatin 20 mg 4 tablets. So these 3 tablets we are giving along with the oxygen support for symptomatic relief. And we will refer this patient to the higher center because we don't have echo. So next step is we will do 2D echo and coronary angiography plus minus stenting. In 2D echo we will see if there is any ejection fraction abnormality, is there any hypokinesia, like in mostly patient there is LV और RV hypokinesia, means जो वॉल होती है हार्ट की वो कम मूव करती है। तो यहाँ पे हमने देखा चेस्ट पेन पहली चीज़, दूसरी चीज़ हमने देखा ECG में ST एलिवेशन। तो यहाँ पे V1 V2 में मिल रहा है। जब V1 V2 में मिलता है तो सेप्टल MI होता है, एंड V1 V3 V4 V5 V6 में मिलता है तो एंटीरोलेटरल MI होता है। जब लीड 2-3 AVF में ST एलिवेशन मिलता है 2-3 एंड AVF में तो ये इन्फीरियर वॉल MI होता है। मैंने MI के दूसरे वीडियोस भी बनाया, आप उनको देख सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए। अब मैं ये वीडियो हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। एक पेशेंट आया हमारे पास, मेल पेशेंट है, 50-60 ईयर एज है लगभग। इसको चेस्ट पेन है, 15 डेज से डिस्नी ऑन एक्सर्शन है, मतलब कि जब ये काम करता है सीढ़ियाँ चढ़ता है तो इसे थकान होती है। इसका चेस्ट पेन आज सुबह से बढ़ गया है। इसको हाइपरटेंशन है, मतलब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है 3-4 साल से, और ये टेबलेट एम्लोडिपिन पर है 3 साल से। इसको हाइपर यूरिसेमिया भी है। तो जैसे ही चेस्ट पेन देखा हमने, चेस्ट पेन तो हम सबसे पहले ECG करते हैं ये रूल आउट करने के लिए कि पेशेंट को कोई कार्डियक कंडीशन या हार्ट अटैक तो नहीं है। अब हमने ECG में देखा कि इसकी V1 एंड V2 लीड में ST एलिवेशन है। ये आप देख रहे हैं ST सेगमेंट जो है वो कोविंग लिए हुए है, मतलब कि स्लाइटली कॉन्वेक्स अपवर्ड जैसा इसका मॉर्फोलॉजी है। तो ये V1 और V2 में स्लाइट ST एलिवेशन हमको दिख रहा है। और जब हमको ये ST एलिवेशन दिखा तो हमने इस पेशेंट के अंदर TROP-T किया, और आप जैसे कि देख सकते हैं ये TROP-T टेस्ट पॉजिटिव आया। TROP-T नेगेटिव कब होता है? जब एक लाइन हो, तब चांसेस कम होते हैं कि हार्ट अटैक होगा या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा। जब TROP-T में टेस्ट में 2 लाइन आती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं
ये 2 लाइन। वैसे तो और भी टेस्ट होते हैं, LDH, मायोग्लोबिन, CPK, MB, ट्रॉप ट्रॉपाई, तो ये सारे टेस्ट कार्डियक मार्कर्स होते हैं जो कि हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से, इस्चेमिया होने से इनका रेज लेवल हो जाता है, ये नेक्रोसिस होने से मसल से ये एंजाइम रिलीज होते हैं। तो जैसे ही हार्ट अटैक होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है या ब्लॉकेज होता है हार्ट की नलियों में, ब्लड वेसल्स में, तो वहाँ की मसल्स का इस्चेमिया होता है, मतलब कम ब्लड सप्लाई, कम ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया और नेक्रोसिस होने से ये जो है ट्रॉप्टी मार्कर निकलता है, ट्रॉप्टी एंजाइम हार्ट का स्पेसिफिक होता है, और ये यहाँ पे हमें दोनों लाइन पॉजिटिव मिल जाती है। जब ये दोनों लाइन पॉजिटिव हैं तो ये हमें इमीडिएटली पता चल जाता है। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है। अब हमने आपको ये 3 स्टेप में आपको हार्ट अटैक की या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की डायग्नोसिस हमने आपको समझा दी है। पहला चेस्ट पेन है पेशेंट को, नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन है। इमीडिएटली हमने ECG किया, ECG में ST एलिवेशन मिला। हमको लीड्स देखनी है, V1 V2 लीड्स में यदि ST एलिवेशन है तो सेप्टल MI है, मतलब कि हार्ट के 2 वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो वहाँ पे इन लीड्स की पोजीशन होती है, हम प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे ST एलिवेशन मिला। जैसे हमको ECG में ST एलिवेशन मिला, हमने ट्रॉप्टी किया, ट्रॉप्टी पॉजिटिव आया, हमने इस पेशेंट को लोडिंग डोज दिया। लोडिंग डोज में हम एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देते हैं जिसमें कि एस्पिरिन और क्लोपिटोग्रिल होती है और एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होती है एट्रोस्टेटिन। लेकिन ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, इन तीनों की 4-4 टेबलेट दी जाती है, पेन साथ में पेन रिलीफ दिया जाता है। तो इसके बाद हम ECG के बाद हमने किया ट्रॉप्टी के बाद हम दूसरा टेस्ट करते हैं। देखिए सीक्वेंस में टेस्ट करते हैं ECG, फिर कार्डियक मार्कर, सिंस हमारे ट्रॉप्टी अवेलेबल है तो हम ट्रॉप्टी करते हैं। इसके बाद 2D इको किया जाता है, रिपीट सीरियल ECGs करते हैं चेंजेस देखने के लिए, कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं CAG, एंड प्लस माइनस स्टेंटिंग, मतलब कि ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है तो स्टेंटिंग कर दी जाती है ऑन द टेबल इटसेल्फ। अब आप देखेंगे कि हम इस पेशेंट को रेफर कर रहे हैं हायर सेंटर पे, कार्डियक इमरजेंसी पे, हायर सेंटर पे जहाँ पे इनका कोरोनरी एंजियोग्राफी होगा। तो दिस वाज द वीडियो ऑफ एक्यूट MI एंड आई एक्सप्लेन्ड यू इन वेरी सिंपल एंड ईजी अप्रोच। होप यू लाइक्ड इट, प्लीज़ शेयर इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको ये पसंद आया तो लाइक मारिए और घंटी को दबाइए, बेल आइकन को, ताकि आगे भी इस तरीके के मैं वीडियो बनाऊं तो आपको ये आराम से समझ आ सके। और आप नॉर्मल लोग भी हैं तो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि डॉक्टर ने क्या देख करके क्या ट्रीटमेंट दिया है, इस तरीके की चीज़ें। और साथ में यदि आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे और अच्छी हो जाती है। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, QRS की हाइट बहुत ज़्यादा है, दो लीड्स में 35 मिलीमीटर से ऊपर होने पर ये LVH के साइन होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक चीज़ और मैं बता दूँ, लीड 1 और लीड 3 एंड लीड 1 और AVF के अंदर QRS कॉम्प्लेक्स अपोजिट हैं। ये इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, 1 and 3, 1 and AVF। तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी है, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन LVH ये दोनों मिलता है तो हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन में हमको इको में कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी मिलती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो for today this much is enough, and you can follow me on Instagram. My ID is DRANUJ5, and thank you for connecting and watching. Hope that helps you. All the best. Thank you for watching.